Hi dear students, we have started our chapter 10, that is circles, and we have discussed about some facts of tangent lines, circles, and its theorems, that is 10.1 and 10.2 theorems we have completed. Today we will start the questions based on these theorems in this chapter. So I am explaining its example number 1 now. And in example, he say, prove that in two concentric circles, the chord of the larger circle, which touches the smaller circle, is bisected at the point of contact. What is the question? See, there are two concentric circles. This one circle, this two circles. Concentric circles you know very well, which have center same and radius different. The circles which have same center and different radius. He say the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Suppose this is AB, this center O. When AB chord will touch the smaller circle, suppose point is P. थोड़ा बताओ, बोल लो थोड़ी, थोड़ा बताओ, दूर मत हटना, कने कने रहे, थोड़ी दूर जाओ, दूर दूर. Now, when AB is the chord of larger circle and it is the tangent to the smaller circle, then P will be the point of contact for this circle. So we have to prove this P point bisect AB, means AP will be equal to PB. This we have to prove. So what will we write? In circles, in concentric circles, AB is the chord of larger circle and AB is tangent to the smaller circle with P as point of contact. O is the center of the circle Now see, we will write join OP. When we join OP, then this will be the radius and this will be the tangent. So according to theorem 10.1, radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. So OP will be perpendicular to AB. Region you will write radius is perpendicular to tangent. That's it. Now OP is perpendicular to AB. Then you know the perpendicular drawn from the center to the chord will bisect the chord. Then OP is perpendicular to AB, so OP bisect AB because perpendicular drawn from center to chord bisect the chord. Hence
AP will be equal to PB, and this we have to prove only. What was the question? There are two concentric circles. There is a chord of a larger circle which is also the tangent to the smaller circle. Then we will join center to the point of contact. Then this will be the radius, and radius will be perpendicular to the tangent. And this is perpendicular to AB. AB is the chord for the larger circle, so it will bisect the chord. This was the question. See its next example. Example is two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point D. Then prove that this will be this. See. Question is, there is a T point at the exterior part of the circle, and from this point two tangents are drawn. P points are P and Q. O is the center. OP he joins PQ, and this joins. Now question he say we have to prove angle PTQ will be equal to twice of angle OPQ. This is the question. See, this is the circle. T is the exterior point of the circle, and there are tangents TP and TQ are drawn here to the circle. O is the center of the circle. PQ we will join. Then angle this PTQ will be twice of OPQ. We have to prove. Suppose I am taking this angle 1 and this angle 2. Means we have to prove angle 1 will be twice of angle 2. Clear? Now see, we will write TP equal to TQ. But we will write tangents drawn from external point to the circle are इक्वल. एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे जो टेंजेंट लाइन से ड्रॉ की जाती है वो क्या होती है? इक्वल होती है लेंथ में. कहाँ गए? थ्योरम 10.2. नाउ इन ट्रायंगल TPQ, TP is equal to TQ, so let this angle be theta and this angle be theta. Angle TPQ will be equal to angle TQP, that is theta we are taking here, and you will write opposite sides of equal sides, sorry, opposite angles of equal sides. Okay, now we will write angle 1 plus theta will be 180 degree by angle sum property of triangle. Now we will write angle 1 plus twice of theta is equal to 180 degree
then angle 1 will be equal to 180 degree minus 2 theta, means 2 theta is equal to 180 degree minus angle 1. We will write this equation as 1. Now theta plus angle 2 is 90 degree, theta plus 2, this radius perpendicular will to the tangent, that theta plus angle 2 will be 90 degree. What will be the region? Radius perpendicular to tangent. Okay, then theta will be 90 degree minus angle 2. We want to take 2 theta because in equation 1 when we compare its left hand side, so here 2 theta is there, so we will take 2 theta. So on multiplying both sides we get 2 theta is equal to 2 into 90 minus angle 2, means 2 theta is equal to 180 degree minus twice of angle 2. We are taking equation 2. Then we will write from equation first and second, 180 degree minus angle 1 is equal to 180 degree minus twice of angle 2. 180 degree cancel down, minus cancel down, angle 1 is equal to twice of angle 2. This we have to prove. See, what was the question? सर्किल है, सर्किल में टी एक्सटीरियर पॉइंट है, इसे 2 टेंजेंट लाइन से ड्रॉ किए. अपने को प्रूव करना है कि ये जो एंगल 1 है ये एंगल का ट्वाइस के इक्वल होगा. हमने यहाँ पे क्या किया, इसको एंगल थीटा लिया, इसको थीटा लिया, तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हुई. आइसोस्केलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है, तो ये थीटा थीटा हो जाएंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल 1 थीटा और थीटा इनको जब ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल आएगा. वहां से हमने ट्वाइस ऑफ थीटा 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की और वो आता है 180 डिग्री माइनस एंगल 1. फिर हम थीटा और एंगल 2 है इसका हम 90 डिग्री लेंगे क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये हमने 90 डिग्री लिया. यहाँ से हमने थीटा लिया 90 माइनस 2 एंगल 2. देन इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 थीटा था, तो यहाँ भी हमें 2 थीटा लेना होगा. तो 2 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आता है. जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब आप कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है और राइट हैंड साइड पे आप इक्वल करेंगे तो 180 डिग्री माइनस एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2. 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2. हैंस प्रूव. यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में. और इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो भी आप देख लीजिए. लास्ट क्वेश्चन में आपके पास फिगर देता है, एग्जाम्पल नंबर 3 है और वो कहता है कि PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm and the tangents at P and Q intersect at a point D. Then find length TP. ये सर्किल है, इससे P और Q पॉइंट से टेंजेंट लाइंस ड्रॉ की हैं जो T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है. PQ हमारे पास कोड देता है वो, तो ये इसका सेंटर हो गया. PQ हमारे पास एक कोड है. यहां से इसकी जो रेडियस देता है वो 5 सेंटीमीटर देता है और जो कोड है PQ वो आपके पास है 8 सेंटीमीटर की देता है. अपने को फाइंड आउट क्या करना है कि जो टेंजेंट है कि TP इसकी लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है. ओके, आप यहाँ पे क्या करेंगे, ज्वाइन TO को हमने ज्वाइन किया यहाँ पे. जो थ्योरम आपकी 10.2 थी एक बार समझ लीजिए उसको. हमने प्रूव किया था कि जो एक्सटीरियर पॉइंट है उससे ये जो टेंजेंट लाइंस होती है ये इक्वल होती है, ये हमने प्रूव किया था. उसके लिए हमने किया था कि इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया था. अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो उससे रिजल्ट निकलता है कि ये जो एक्सटीरियर पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है
ये इन एंगल्स का भी बाइसेक्टर होता है, और वैसे भी जब इनको कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो CP/CT से ये बोथ एंगल्स इक्वल आएंगे और ये भी बोथ एंगल्स इक्वल आएंगे। इट मीन्स ये इन एंगल्स के भी बाइसेक्टर होते हैं। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आप लिखोगे ट्रायंगल PPQ is an isosceles triangle। क्योंकि इसमें TP और T को इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। TO is the bisector of an angle PTQ, then TO also bisect PQ। जो TO है वो इस एंगल का बाइसेक्टर हुआ, तो इस ट्रायंगल में जब इस एंगल का बाइसेक्टर है तो ये इसको बाइसेक्ट भी करेगा। और सपोज इसको मैं M नेम दे देता हूँ, बाइसेक्ट PQ एट पॉइंट M पे इसको हम बाइसेक्टर हो जाते हैं। तो जो हमारा PM है वो इक्वल हो जाएगा MQ के और इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ PQ के, दैट इज हाफ ऑफ 8। 4 से डिवाइड हुआ मीन्स 4 सेंटीमीटर आता है ये हमारा। ओके, और ये इस पे परपेंडिकुलर भी रहेगा, बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर। बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली यहाँ पे लिख देना परपेंडिकुलरली। ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल के रिजल्ट्स हैं। ये 4 सेंटीमीटर रहेगा। अब हम लेते हैं नाउ इन ट्रायंगल PMO, हमारा जो OM स्क्वायर आएगा वो आता है PO स्क्वायर माइनस PM स्क्वायर। तो OM स्क्वायर हमारा आता है PO 5 है, इट्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 16, दैट इज 9। तो जो OM आएगा हमारा वो प्लस माइनस 3 आएगा, मीन्स OM नेगेटिव हम लेंगे नहीं, ये आप शो कर देना। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं इसकी कि OM हमारा जो है वो 3 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है मैं इसको ले लेता हूँ y, ये हो गया 3। तो जो टोटल लेंथ है वो बन जाएगी y प्लस 3। और जो TP लेंथ है उसको TP रख लो, या सपोज मैं इसको x ले लेता हूँ, x ले लीजिए, इससे इजी रहेगा। आप लेंगे लेट TM be y सेंटीमीटर एंड TP be x सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, एक बार तो जो PTO ट्रायंगल है ये कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल होगी क्योंकि इसमें 90 डिग्री एंगल ये रहेगा, ठीक है। और एक बार TPM ट्रायंगल में ये 90 डिग्री एंगल रहेगा। आपको x फाइंड आउट कर लेना है। आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल TPO, इस ट्रायंगल में आप फाइंड आउट करेंगे x स्क्वायर। x स्क्वायर जो हमारा है वो आएगा y प्लस 3 एंड इट्स स्क्वायर माइनस 5 एंड इट्स स्क्वायर, y प्लस 3 एंड इट्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, देन x स्क्वायर विल बी y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 25, मीन्स x स्क्वायर हमारे पास आता है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 25 प्लस के 9 तो माइनस के 16। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम देते हैं। अगेन इन ट्रायंगल TPM ट्रायंगल में आपको x ही फाइंड आउट करना है, तो x स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे हम। x स्क्वायर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है, तो जो x स्क्वायर आएगा वो आएगा y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 16। ओके, तो x स्क्वायर के इक्वल हमारे पास 2 इक्वेशंस आती है, फर्स्ट सेकंड। आप लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
लेफ्ट हैंड साइड इनके इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे। हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। वाई स्क्वायर बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो x 6y आता है हमारे पास 16 प्लस 16 मीन्स 6y आता है हमारे पास 32, तो y रहेगा 32 अपॉन 6 मीन्स 2 3 जा और 2 16। y की वैल्यू आती है 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर, but we have to find the value of x. Then using y is equal to 16 upon 3 in equation सेकंड में रख लेते हैं, ये इजी रहेगा। इन इक्वेशन सेकंड है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, तो वाई स्क्वायर रहेगा 16 प्लस अपॉन 3 एंड इट्स स्क्वायर प्लस 16, देन एक्स स्क्वायर विल बी 256 9 plus 16 square 256 और 3 का square 9, then x square will be, we will take 9 as the LCM, so 256 plus 144, when we add this will be 400 upon 9, then x square will be 400 upon 9 and its square root, then x will be 20 upon 3 centimeter. So the length of TP, that is TP equal to 20 upon 3 सेंटीमीटर, ये लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी थी। वंस अगेन आई रिपीट इट, क्वेश्चन है एक सर्किल है, सर्किल में P और Q पॉइंट से 2 टेंजेंट लाइन से ड्रॉ किए हैं। PQ कोड है जो कि 8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ देता है। जब इन टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो वो एक्सटीरियर किसी T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। OP जो इसकी रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। हमने क्या किया है, हमने OT को ज्वाइन किया है और जो OT है वो इस एंगल का बाइसेक्टर रहेगा, और जब इस एंगल का जो बाइसेक्टर है तो जो TPTQ ट्रायंगल है उसमें ये इस PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी रहेगी। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, जब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा तो जो ये 8 है तो जो हमारा PM है वो कितना रह जाएगा, 4 सेंटीमीटर रह जाएगा। तो इसको हमने 4 ले लिया। यहाँ पे जब ये इसका परपेंडिकुलर रहेगा तो इस ट्रायंगल में PMO ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है और OM फाइंड आउट किया जो कि हमारा 3 सेंटीमीटर आता है। अब एक बार आपको ट्रायंगल TPO लेना है, उसमें भी आपको x स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और एक बार ट्रायंगल TPM लेना है, उसमें भी आपको x स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाती है, इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकंड। इन इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इनका x स्क्वायर आता है, राइट हैंड साइड हम कंपेयर करेंगे y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू वहाँ पे 16 अपॉन 3 आता है, और इसी y की वैल्यू को आप फर्स्ट में सेकंड में किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी और वो आती है 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। मीन्स x हमने क्या लिया था, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा हमारा 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे इन थ्योरम्स के बेस, इनसे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज 10.2 के आई थिंक फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। इसके आपको फर्स्ट 9 क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है, इसके बाकी के क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी उसके वीडियोस बना के डालेंगे हम। सो फर्स्ट 9 क्वेश्चंस यू विल ट्राई फॉर दिस वन, एक्सरसाइज 10.2। थैंक्स।